अगले लेक्चर्स में सीखा स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म और अब हम शुरू करने जा रहे हैं स्टीरियो आइसोमरिज्म। एज यू कैन सी द डेफिनेशन इज रिटन ऑन द बोर्ड। तो चलिए शुरू करते हैं ना लेक्चर स्टीरियो आइसोमरिज्म। सो फर्स्ट ऑफ ऑल डेफिनेशन को समझते हैं, क्या होता है स्टीरियो आइसोमरिज्म। The definition says compounds which have same molecular formula and the same sequence of covalently bonded atoms. Molecular formula भी same है, same sequence of covalently bonded atom दोनों ही same है, but different special orientation are known as stereoisomer. That means these are the isomers which are having same formula, same structure, but the special arrangement of atoms or functional groups attached with carbon are varying. Suppose we have a structure in which there are two carbons and some OH functional groups are also attached, hydrogen and methyl groups are also present. So this is a structure in which there are 4 carbon, second and third carbon are having OH functional group. Now I am going to write another structure in which there are also 4 carbons, but here the spatial arrangement of these functional groups are altered. Suppose OH comes over here, H goes there, again. Now, let us see again our definition. Compounds which have same molecular formula. So here we have 2 compounds and both are having same molecular formula. Both are having 4 carbon, 2 OH functional groups, hydrogen attached with them, all are same. So both are having same molecular formula and the same sequence of covalently bonded atom. Second carbon contains OH, third carbon also contains OH in this structure. In that structure also second and third carbon are having OH functional group. So same sequence of covalently bonded atoms, but different spatial orientations. So here spatial orientations of OH groups are totally different from that structure. In that case, these 2 structures are said to be stereoisomers of each other. ये तो अभी सिर्फ बेसिक डेफिनेशन है, हम लोग इसमें आगे और बहुत कुछ सीखेंगे. Stereoisomers are mainly of 2 types. There are 2 types of stereoisomer. The very first type is conformational isomer and the second one is configurational isomers. इन दोनों के बारे में पूरी डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे. Conformational and configurational. And the configurational isomers are further divided in 2 types, which is optical isomer and geometrical isomer. इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे ओनली ऑन कन्फॉर्मेशनल आइसोमर्स, while for configurational isomers we have to prepare at least 2 videos about 1 hour duration. So it is very larger topic, configurational isomer, but first we are going to learn about conformational isomer. configurational बाद में सीखेंगे, पहले कन्फॉर्मेशनल आइसोमर्स के बारे में डिस्कस करेंगे. ओके बच्चों, तो शुरू करते हैं कन्फॉर्मेशनल आइसोमर्स. हमारा ये पूरा वीडियो अब कन्फॉर्मेशनल आइसोमर्स पे ही डिस्कशन पे चला जाएगा. तो फर्स्ट ऑफ ऑल देयर इज अ डेफिनेशन ऑफ कन्फॉर्मेशनल आइसोमर्स इन फ्रंट ऑफ यू. इट सेज different arrangement or different arrangements formed by
rotation about a single bond. That means if sigma bond is rotated and the different structures are formed, then all such structures are known as conformer or conformational isomers. Suppose this is a sigma bond and two carbons, one carbon and the other carbon, two carbons are attached by a sigma bond, and if this sigma bond rotates and different structures are obtained, the spatial arrangement. Suppose these are the functional groups. All my fingers, there are 4 fingers. So these 4 fingers, which are functional groups, attached with carbon, and both these carbons are attached with this sigma bond. Now if there is a sigma bond between two carbon, then I should have only 3 fingers in that case, because fourth bond is this marker. But इसको अगर हम ध्यान में न ले, ऐसा समझे कि यहाँ पे सिर्फ फंक्शनल ग्रुप्स है कार्बन के साथ, संख्या को अभी ध्यान में न लीजिएगा, फिर तो ही आप समझ पाएंगे मैं क्या बताना चाहता हूँ आपको. तो पहले suppose these two carbons are attached by a single bond, and this is the first arrangement of functional groups around carbon. But if imagine this sigma bond is rotating somewhat 60 degree, now in that case the position or spatial arrangement of functional groups are now changed. This is the first. Now this is the second conformation. So these isomers so formed are known as conformational isomers of each other, which are formed by rotating about a sigma bond. So if sigma bond rotates, newer structures are obtained. All such structures are known as conformers of each other or conformational isomers of each other. अब कन्फॉर्मर्स को किस तरह से प्रेजेंट किया जाता है वो सीखते हैं. देयर आर 2 मेथड्स. फर्स्ट मेथड इज न्यूमैन प्रोजेक्शन. द फर्स्ट मेथड टू रिप्रेजेंट कन्फॉर्मर इज न्यूमैन प्रोजेक्शन. Suppose we have a simple molecule of ethane and we are going to draw the conformers, possible conformers of ethane. So, according to Newman projection, there is a technique. Look carefully how I am drawing the structure of ethane according to Newman projection. Ethane means CH3 single bond CH3. So this single bond can be rotated. That means we are having 2 carbons attached with a single bond. Suppose this is first carbon and this is second. So first of all, the carbon which is situated in front carbon, that means first carbon, which is directed towards ourselves, is represented by 3 lines connecting with each other and making a Y shape. So this is the first carbon. These are 3 bonds. At that bonds, 3 hydrogens are attached with it. This is first carbon, number 1. Now there is a sigma bond after this dot, which वो हम देख नहीं पाएंगे क्योंकि ये तो 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है. तो ये बोर्ड के अंदर जा रहा है, ये डॉट के पीछे से हमारा सिग्मा बॉन्ड इस व्हाइट बोर्ड के अंदर जा रहा है और उस तरफ दूसरा कार्बन है. दूसरे कार्बन को हम लोग एक सर्कल से बताएंगे. ये सर्कल दूसरा कार्बन, पहला कार्बन ये ब्लू डॉट है, सिग्मा बॉन्ड हमें दिखेगा नहीं. दूसरा कार्बन ये सर्कल है और 3 बॉन्ड, 3 हाइड्रोजन जो दूसरे कार्बन के साथ अटैच्ड है, उसे बताने के लिए इस सर्कल में से 3 लाइन को बाहर निकालनी है. सपोज दिस इज फर्स्ट लाइन, दिस इज सेकंड एंड दिस इज थर्ड, एंड ऑल these लाइन्स आर रिप्रेजेंटिंग बॉन्ड्स with which hydrogens are attached. So this is the Newman projection of ethane. Now imagine
if this sigma bond is rotating, suppose this first carbon and second carbon, there is a sigma bond and it is rotating about, in that condition the structure formed will be like this. First of all, we are going to draw first carbon which is rotated somewhat. So if it rotates, then it will look like this. This is our first carbon, there is a sigma bond, and second carbon is represented by a circle, and hydrogens attached with that carbon are at that position. So the position of this red carbon or red circle and hydrogen is not changed. Only the position of our blue hydrogens are changed. So this is completely different structure from this. That means our ethane is having two different conformers, first and second. This is the Newman projection of ethane. There is another method which is known as Sohor's projection. Sohor's projection. Sohor's projection is also a 3D image. बट सोहर्स प्रोजेक्शन में हम लोग इस सेम मॉलिक्यूल को ओब्लिक एंगल से देखते हैं, तो ये कुछ इस तरह से दिखे. सपोज यहाँ पे 1 2 3 कार्बन, दिस इज 3 हाइड्रोजन, दिस इज आवर फर्स्ट कार्बन, दिस वन, एंड देयर इज अ सिंगल बॉन्ड. दिस इज आवर सेकंड कार्बन, and there are also 3 hydrogens, first, second, third. So this is our one conformer of ethane. Now if this sigma bond is rotated, then the second structure formed will look like this. This is first carbon. Now the position of hydrogen is completely altered. एक हाइड्रोजन नीचे था, दो ऊपर थे. यहाँ पर एक ऊपर आ गया, दो नीचे है, और ये हमारा सिग्मा बॉन्ड. यहाँ पे हमारा होगा दूसरा कार्बन, और उसके साथ जुड़े हुए हाइड्रोजन की पोजीशन हम लोग नहीं बदलते. तो ये हो गया हमारा दूसरा कंफर्म. मोस्टली न्यूमैन प्रोजेक्शन इज प्रिफर्ड टू ड्रॉ और टू रिप्रेजेंट द conformational isomers. But this is also one method to represent conformers, which is known as Sohor's projection. Now, both these conformers are having some definite name. मैं भी लिखता हूँ, आपको लिखते ही पता चल जाएगा कि इसका नाम ऐसा क्यों रखा गया. The name of this conformer is eclipse. जो ग्रहण होता है, सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, उस तरह से इसको इक्लिप्स नाम रखा गया है. क्यों? क्योंकि यहाँ पर प्रत्येक एटम उसके पीछे वाले कार्बन के एटम को पूरी तरह से ढांकता है. सेम लाइन में दोनों ही कार्बन के साथ जुड़े हुए फंक्शनल ग्रुप एक ही लाइन में है. दैट मीन्स दे आर इक्लिप्स. माय फिंगर्स आर इक्लिप्स इन दिस पोजिशन. But if sigma bond rotates, then my fingers are now not eclipse. So this structure is known as staggered structure. Eclipse and staggered. Eclipse means the functional group attached with both carbon are in a same line. That means they are overlapping each other. While in staggered, the functional groups attached with both these carbons are not in a single line. Suppose हमारे पास playing cards का एक स्टेक है हमारे पास, और इस थप्पी को हम लोग यहाँ से पकड़ के रखो आपके सामने. 52 cards are there in a stack, but you are able to see only first card. There are 51 cards placed behind that first card. That means there are total 52, but you are able to see only the first card which is in front of you. So this arrangement of playing cards is known as eclipse kind of arrangement.
Now if I'm going to make a fan of all these 52 cards, Chinese fan, हवा डालने वाला पंखा, अगर ऐसा बना लूं मैं, तभी आपको शायद 52 कार्ड्स दिखेंगे। अभी भी वो सब एक दूसरे के पीछे ही है, लेकिन फिर भी वो दिखाई दे रहे हैं। दिस इज अ स्टेगर्ड काइंड ऑफ अरेंजमेंट। अगर हम सिनेमा हॉल में जाए, थिएटर में, या फिर टाउन हॉल में भी जाए, वहां जो सिटिंग अरेंजमेंट होता है, चेयर्स जो रखी गई होती है, वो इक्लिप्स नहीं होती, वो स्टेगर्ड होती है। एक चेयर के एग्जैक्ट पीछे दूसरी चेयर नहीं आती, एक चेयर के पीछे थोड़ी हट के दूसरी चेयर होती है। सो इट इज अ स्टेगर्ड काइंड ऑफ अरेंजमेंट ऑफ चेयर्स इन सिनेमा हॉल्स टू। सो नाउ आई थिंक आपको अब समझ में आ ही गया होगा कि इक्लिप्स किसे कहेंगे और स्टेगर्ड किसे कहेंगे। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। यहां पे अगर मैं कहूं कि इस कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड और इस कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड का जो एंगल है, वो एंगल कितना होगा, तो यहाँ पे अगर मैं इसे कहूं थीटा, इसको थीटा एंगल को यहाँ पे तो मैं नहीं दिखा पाऊंगा, लेकिन यहाँ पे अगर मैं कहूं ये एंगल थीटा, तो ये कितना हुआ। सपोज द एंगल बिटवीन दिस हाइड्रोजन टू दिस हाइड्रोजन इज 120, तो ये हाइड्रोजन तो इन दोनों के बराबर बीच में है। दैट मीन्स हियर थीटा इज 60 डिग्री। In that case, the angle between these two bonds, which means theta, will be 0 over here. So, theta is 0 in eclipse projection, eclipse conformer, while it is 60 degree in staggered conformer. If the angle theta is between 0 to 60, then such kind of conformer is known as स्क्यू कन्फर्मर। अगर 0 है एंगल तो उसे कहा जाएगा इक्लिप्स, अगर वो 60 डिग्री है तो उसे कहा जाएगा स्टेगर्ड। सपोज ये कार्बन और ये दूसरा कार्बन दोनों के साथ जुड़े हुए हाइड्रोजन ये एक ही लाइन में हो, तो इस कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड और पीछे वाले कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड के बीच का जो एंगल रहेगा वो 0 है, इक्लिप्स। और अगर ये ऐसा घूम जाए तो इस कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड और इस कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड के बीच का जो एंगल बना वो 60 डिग्री हुआ। सो इक्लिप्स में थीटा इज इक्वल टू 0, स्टेगर्ड में थीटा इज इक्वल टू 60। और अगर इसके अलावा कोई भी बॉन्ड एंगल बने, कोई भी एंगल बने थीटा, तो उस कन्फॉर्मर को हम लोग स्क्यू नाम देंगे। बात ऐसी है कि इक्लिप्स और स्टेगर्ड कन्फॉर्मर अगर इथेन के पॉसिबल बने तो क्या हम लोग इसे आइसोलेट कर पाएंगे। अगर हमारे पास एक सैंपल हो इथेन का और अगर हमें कहा जाए कि आप इथेन के इक्लिप्स कन्फॉर्मर को अलग करके दिखाएं, तो ये पॉसिबल नहीं बनेगा। क्यों? द रीजन इज दिस सिग्मा बॉन्ड बिटवीन टू कार्बन इन इथेन आर continuously rotating, and the speed of its rotation is about million times per second. So ये बहुत जल्दी से घूमता है सिग्मा बॉन्ड अपनी एक्सिस पर। That means these conformers we are not able to isolate these kind of conformers if we have a sample of some compound. So they are continuously changing. तो ये अलग करना हमारे लिए मुश्किल होगा, क्योंकि 1 सेकंड में 1,00,000 से ज्यादा बार ये रोटेट करता है। और ये रोटेट क्यों करता है वो भी हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। यहाँ पे देख लेते हैं सोहोर्स में। यहाँ पे दिस कन्फॉर्मर इज नोन एज इक्लिप्स। दिस वाज इक्लिप्स। व्हाई? बिकॉज each carbon hydrogen bond is covering the carbon hydrogen bond situated behind it. तो ये इक्लिप्स हुआ। यहाँ पे ये कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड किसी कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड को इक्लिप्स नहीं करता, देयरफॉर इट इज अ स्टेगर्ड कन्फॉर्मर।
So this is the Sohor's projection of conformational isomers, while this is Newman projection of conformational isomer. चलिए अब इथेन के कन्फॉर्मर्स को थोड़ा डिटेल में स्टडी करते हैं. Ethane, which is C2H6, and this is the Newman projection of ethane, which is in eclipse form, because here the angle, which is called the dihedral angle, is 0 degree. So this is eclipse conformer. Now we are going to rotate this single bond or sigma bond between these two carbons to 360 degree stepwise. So in first step we will rotate it 60 degree. That means this is the carbon which is situated behind, and we are going to rotate the sigma bond, and the position of this red hydrogens will be changed. अब हम इस तरह से इसको रोटेट करेंगे. So ये blue lines, that means this first carbon and hydrogens attached with it remains in the same position, while the red carbon is rotating. That means hydrogens are now situated at this condition, and the angle between these hydrogens is, which is dihedral angle, theta is 60 degree. So now this conformer is known as staggered. Again we are going to rotate it 60 degree, and if it happens in that condition, our structure will be like this. This is the first carbon, these are 3 hydrogens, and if this red carbon is rotated 60 degree, in that condition the positions of all hydrogens will become eclipsed. So again the dihedral angle becomes 0. Here it was 60 degree, while here it is 0. So again it is an eclipse structure. Now if we further rotate this to 60 degree, in that condition again this is the carbon situated behind, this is the first carbon, these are the hydrogens, and after rotation of 60 degree again we have a compound or conformer which is known as stable. और अगर इससे फिर से 60 डिग्री रोटेट करें तो ये स्ट्रक्चर बन जाएगा फिर से इस स्ट्रक्चर जैसे. तो हम लोग अब इसको लेबल कर देते हैं ए, बी, सी एंड डी, और हम अब स्टेबिलिटी को डिस्कस करने जा रहे हैं. आप भी इजीली बता पाएंगे कि यहाँ पे हमारे पास 2 इक्लिप्स है, 2 स्टेगर्ड है, इनमें से सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा. तो एकदम सिंपल है. इफ यू ऑब्जर्व दिस इक्लिप्स कन्फर्मर, देन द डिस्टेंस बिटवीन दिस कार्बन हाइड्रोजन एंड कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड इज कंपैरेटिवली लेस, एंड इफ वी ऑब्जर्व दिस स्टेगर्ड कन्फर्मर, ब्लू को इस तरफ रखते हैं, रेड को पीछे रखते हैं, staggered conformer, in that condition the distance between this carbon hydrogen and carbon hydrogen bond is comparatively larger than this. That means this CH bond and CH bond are separated as far as possible. That means there will be less repulsion between them and potential energy will decrease in this condition. So we can say that the potential energy of staggered is less than that of eclipse, and lower the potential energy, more is the stability. That means all staggered conformers are having lower energy, therefore they are more stable, and eclipse are having higher energy, therefore they are less stable. अब अगर इसे हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट करें तो इसका ग्राफ कुछ इस तरह से बनेगा. सपोज यहाँ पर हम लोग पोटेंशियल एनर्जी
डिफाइन करेंगे और एक्स एक्सिस पर हम लोग रखेंगे डाइहेड्रल एंगल थीटा. So if theta is 0, that means we are talking about eclipse conformation, which is having highest energy. So this is the highest energy. And if theta is 60 degree, then energy of this staggered will be decreased. So in that condition, अगर यहाँ पर हमारा कन्फर्मर A हो, यहाँ पर A है, तो B कन्फर्मर हमें मिलेगा इस ग्राफ में कुछ इस जगह पर, यहाँ पर. अगेन फिर से इस स्टैगर्ड में से बनेगा इक्लिप्स C, और C की एनर्जी किसके जैसी होगी? A के जैसी ही होगी. तो अगर हम यहाँ पर एक गाइडलाइन बना दें तो हमारे अगले कन्फर्मर C की एनर्जी A के बराबर ही होगी. फिर से इक्लिप्स में से B बनता है जो कि स्टेगर्ड है, उसकी एनर्जी इस B के बराबर होगी. तो यहाँ पर B अगर हम एक गाइडलाइन बना दें तो यहाँ पर हमारा कन्फर्मर मिलेगा, वो होगा B. सो हम इस तरह से यहाँ पर ग्राफ के बारे में लिख पाएंगे कि एनर्जी ऑर्डर विल बी लाइक दिस. द हाईएस्ट एनर्जी विल बी ऑफ A and C. That means energy of A and C are equal and they are greater than the energy of B and D. Energy of A and C are greater than the energy of B and D. और स्टेबिलिटी के बारे में बताएं. So in case of stability, the stability of A and C are lower than that of B and D. So A and C की स्टेबिलिटी सेम होगी लेकिन वो कम होगी B और D के कंपैरिजन में. तो एनर्जी चार्ट भी कन्फर्मर के लिए हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं. इसके बारे में भी नीट और जेई में क्वेश्चंस आते हैं. और अगर एक और बात हम डिस्कस करें तो वो ये होगा, जैसे कि मैंने पहले बताया कि ये कन्फर्मर जब बनते हैं कंटिन्यूअसली एक दूसरे में कन्वर्ट होते जाते हैं. 1 मिलियन टाइम पर सेकंड ये एक दूसरे में कन्वर्ट होते हैं. लेकिन सपोज वी हैव अ स्टेगर्ड कन्फर्मर फॉर एन इंस्टेंस and now it is trying to be converted into eclipse. In that condition it is going from lower energy to higher energy. That means अगर हमारे पास स्टेगर्ड हो और वो इक्लिप्स बनने जा रहा हो तो उसका मतलब होगा ये लोअर एनर्जी से हायर एनर्जी की ओर जा रहा है. B में से C बने तो लोअर एनर्जी में से हायर एनर्जी की ओर जा रहा है. ऐसा करने के लिए इसको इस तरह का एनर्जी बैरियर को पार करना पड़ेगा. It should overcome this energy barrier, but in case of ethane, this energy barrier is just about 12 kilojoule per mole. So it is somewhat smaller energy barrier. दूसरे molecules के comparison में ये energy barrier बहुत कम है. Therefore, this B can be converted into C. स्टेगर्ड में से इक्लिप्स बनेगा लेकिन फिर भी यहाँ पर जो एनर्जी बैरियर पार करना पड़ेगा इसके कारण ये स्टेगर्ड में से इक्लिप्स बनना थोड़ा मुश्किल पड़ेगा. क्योंकि जिस तरह से ये इक्लिप्स में से स्टेगर्ड बनने जाए तो ये हाइड्रोजन के बीच में रिपल्शन होगा. दिस काइंड ऑफ रिपल्शन इज नोन एज टोर्सनल स्ट्रेन. शब्द मैंने बताया torsional strain. So there will be torsional strain if staggered is going to be converted into eclipse, and the energy required for to overcome this energy barrier is known as torsional energy. So torsional energy in ethane is only 12 kilojoule per mole, which is very less. Therefore, staggered can be converted into eclipse, but eclipse is not as stable as staggered. Therefore, it is directly converted into staggered again.
So these kind of rotations are continuously happening in ethane million times per second, but still stability of staggered is more than that of eclipse, and energy of staggered is lower than that of eclipse. So this is all about the conformers of ethane. Now we are going to discuss about the conformer of butane. Okay friends, now we are going to draw the conformational isomers of butane. Conformational isomers of butane. C4H10. This is the formula of butane. Now if we write this formula like this, CH3, CH2, CH2, CH3, then in this structure there are 4 carbons, and suppose we are going to imagine that this sigma bond is going to be rotate. That means the bond formed between these 2 carbon is going to rotate, and we are having different kind of conformers. So if we number all these carbon, then 1, 2, 3 and 4. So we have carbon number 2 and carbon number 3 which are attached by a sigma bond which is going to be rotate. So let us draw the structures first, then we will discuss the stability of all these structures. So let us start from very first structure, and we know how to draw the conformational isomers. First of all, we are going to draw this carbon by a Y sign, Y. So second carbon, this carbon with a blue Y, and I am going to draw this carbon with a red circle. So first of all, a blue Y, upside down Y I am going to draw, उल्टा Y ड्रॉ करूंगा मैं। यहाँ पर सबसे पहले ये Y हुआ, और ये हमारा सेकेंड कार्बन ये वाला बन गया। इसके साथ क्या क्या अटैच हुआ है देखिए, 2 हाइड्रोजन है और 1 मिथाइल ग्रुप अटैच्ड है इस कार्बन के साथ। दैट मीन्स आवर सेकेंड कार्बन इज हैविंग 1 मिथाइल ग्रुप एंड 2 हाइड्रोजन। So this is the methyl group, and these are 2 different hydrogens. Now we are going to draw this third carbon which is just below, just behind this carbon. So it is indicated by a circle, and it also having 1 methyl group and 2 hydrogen. So this is the methyl group and these are 2 hydrogens. So here the dihedral angle will be the angle between 2 CH3 groups, and the angle between these 2 CH3 group is at this time is 0 degree. Theta is equal to 0 degree, and this conformer is an eclipse conformer. Now we are going to rotate it by 60 degree, either clockwise or anti-clockwise. ये किसी भी तरफ आप इसको घुमा सकते हैं। हम लोग क्लॉकवाइज रोटेट कराने वाले हैं इसको। सो अगर हम 60 डिग्री रोटेट करें इस स्ट्रक्चर को, इसमें हम क्या करेंगे, ये हमारा ब्लू वाला जो स्ट्रक्चर है उसको हम स्टेडी रखेंगे, रेड को घुमाएंगे। सो फिर से अपना ये सेकेंड कार्बन जो कि उल्टा Y बनाता है, इस तरह से हमने बता दिया। यहाँ पर मिथाइल और यहाँ पर 2 हाइड्रोजन, और ये हमारा थर्ड कार्बन which is indicated by a red circle, and if this carbon is rotated 60 degree, then we can have structure like this. Okay. Now you know that each 60 degree rotation will give either eclipse or staggered conformer. If we have eclipse conformer and we rotate it to 60 degree clockwise or anti-clockwise, then the structure we can have will always be a staggered structure. And if we have staggered conformer and we rotate it further 60 degree, either clockwise or anti-clockwise, then the structure obtained is always called an eclipse structure. So अगर हमारे पास eclipse हुआ, 60 डिग्री रोटेट करेंगे तो वो स्टेगर्ड में ट्रांसफॉर्म हो जाएगा, और अगर हमारे पास स्टेगर्ड कन्फर्मर है और उसे हम लोग 60 डिग्री रोटेट करवाएंगे
तो वो इक्लिप्स में कन्वर्ट होगा। तो इसी तरीके से इसको हम लोग कहेंगे स्टेगर्ड, बट देयर इज अनदर नेम फॉर दिस स्टेगर्ड ऑल्सो, वो हम कुछ देर के बाद देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, दिस इज द डायहेड्रल एंगल बिटवीन टू CH3 ग्रुप इज 60 डिग्री। ओके, नाम इसका हम लोग बाद में लिखेंगे। अगेन rotating 60 degree more. In that condition, this methyl group will go behind this hydrogen. So the structure can be drawn like this. This is methyl, these are two hydrogen, this is our second carbon, and third carbon is indicated by a red circle, and here this is a methyl group and these are two hydrogens. So again, this is also an eclipse structure because this was staggered and it is rotated 60 degree. Then the structure obtained is called a staggered eclipse structure. Staggered ये है, इसमें से बना ये eclipse. रोटेशन कितना डिग्री हुआ अभी? यहाँ से यहाँ तक का 60 और यहाँ से अगर यहाँ तक पहुंचे तो थीटा बन जाएगा हमारा 120 डिग्री। ये इक्लिप्स है लेकिन इसके जैसा इक्लिप्स नहीं है। देखिए यहाँ पर मिथाइल दूसरे मिथाइल को कवर कर रहा है, यहाँ पर एक मिथाइल हाइड्रोजन को कवर कर रहा है। That means this is totally eclipse. In that condition, you can call this as partially eclipse. So this is partially is eclipse. Okay. इसको अभी और 60 डिग्री रोटेट करेंगे। अगर इसे हम 60 डिग्री रोटेट करें तो ये मिथाइल ग्रुप इस जगह पर आ जाएगा। तो उसे दिखाने के लिए ये हमारा उल्टा Y, यहाँ पे CH3, ये दो हाइड्रोजन और ये हमारा सेकंड वाला कार्बन। थर्ड कार्बन को हम लोग बताएंगे रेड सर्कल से, जिसके साथ यहाँ पर मिथाइल रहेगा, यहाँ पर हाइड्रोजन आ जाएंगे। ये एंगल कितना हुआ? अब 120 में और 60 ऐड कर दो तो ये होगा 180 डिग्री। एंड this was an eclipse structure, and if it is rotated to 60 degree, then the structure obtained is known as a staggered structure. But this staggered structure is also having a particular name. उसको हम लोग बाद में देखेंगे। ओके, इसको अगेन फिर से 60 डिग्री रोटेट करेंगे। आपको अगर सवाल हो कि सर कब तक रोटेट करना है, पूरा 360 डिग्री रोटेशन हमको लेना है। अभी हम लोग आधे तक पहुंचे तो 180 तो हुआ, अभी मोर 60 डिग्री रोटेशन करेंगे। यहाँ से आगे अगर 60 डिग्री रोटेट करें तो ये हमारा मिथाइल फंक्शनल ग्रुप इस हाइड्रोजन के पीछे आ जाएगा। तो उसको ड्रॉ करने के लिए फिर से उल्टा Y, ये हमारा सेकंड कार्बन, यहाँ पे CH3 और ये दोनों हाइड्रोजन तो है ही, और ये हमारा थर्ड वाला कार्बन विथ रेड सर्कल, एंड दिस इज मिथाइल ग्रुप एंड दीज आर हाइड्रोजन। सो अगेन वी आर हैविंग अ स्ट्रक्चर व्हिच इज इक्लिप्स and it is formed from a staggered structure by 60 degree rotation. So now the dihedral angle is 180 plus 60, उसमें ऐड कर दो तो ये बनेगा 240 डिग्री रोटेशन। So it is 240 डिग्री रोटेशन। और ये हमारा फिर से पार्शियली इक्लिप्स बना, इसके जैसा ही बना, तो ये पार्शियली इक्लिप्स है। फिर से इसको 60 डिग्री रोटेट करेंगे। ऐसा करने से ये मिथाइल ग्रुप यहाँ पर आ जाएगा, तो ये फिर से स्टेगर्ड बनेगा। किसके जैसा? ये 60 डिग्री में जब हमने बनाया था उसके जैसा ही ये स्टेगर्ड बनेगा अभी। तो पहला ये हमारा सेकेंड कार्बन उल्टा Y, यहाँ पे एक मिथाइल और दो हाइड्रोजन, और हमारा थर्ड वाला कार्बन उसको हम लोग रेड सर्कल से बता रहे हैं, और ये मिथाइल ग्रुप अभी यहाँ पर होगा और दोनों हाइड्रोजन इस जगह। So this was eclipse, then this is a staggered kind of conformer। उसका अलग नाम है, हम लोग कुछ देर में नाम भी लिखेंगे। अब डायहेड्रल एंगल कितना बना? 240 तो था, उसमें अब 60 जोड़ दो तो यहाँ पे बनेगा 300 डिग्री का एंगल। और अगर हम इसको भी फर्दर 60 डिग्री रोटेट करें
तो हमारे पास ये पहले जैसा ही स्ट्रक्चर आ जाएगा। तो ये हमारा उल्टा वाई, ये सेकेंड कार्बन, यहाँ पर CH3, यहाँ पर दोनों हाइड्रोजन, और हमारा थर्ड कार्बन विथ अ रेड सर्कल, and these are the functional groups attached to with it. So it is also an eclipse structure, and the dihedral angle is now 360 degree. तो हमारे पास टोटल 1 2 3 4 5 6 और 7 स्ट्रक्चर्स है। उसमें से 2 स्ट्रक्चर्स सेम है जिसे हम इक्लिप्स कहेंगे, टोटली इक्लिप्स। हमारे पास ये 2 स्ट्रक्चर सेम है, सेम तो नहीं है लेकिन सेम जैसे कह सकते हैं हम इसे, ये दोनों पार्शियली इक्लिप्स है। लेकिन फिर भी हमारे पास अभी भी 3 स्ट्रक्चर्स बचे हैं। पहले हम लोग इसको लेबल कर देते हैं। इसको बताएंगे हम लोग A, इसको कहेंगे B, इसको कहेंगे C, इसे कहेंगे D, इसे E लेबल कर देंगे, इसे कहेंगे F और इसे कहेंगे G। तो हमारे पास A से लेकर G तक के स्ट्रक्चर्स हैं। अब इक्लिप्स को 60 डिग्री रोटेट करने से जो बनता है उसे कहेंगे स्टेगर्ड। बट इन कन्फॉर्मर्स ऑफ ब्यूटेन, द स्टेगर्ड कन्फॉर्मर in which there is a 60 degree angle between 2 methyl functional group, then such staggered conformer is named as, the spelling is Gauche. It is pronounced as Gauche. It is Gauche. So Gauche means if we have eclipse structure of butane and we rotate it as 60 degree, then the structure obtained is staggered, but this staggered structure is known as Gauche because there is a 60 degree angle between 2 methyl groups. So if the angle between 2 methyl group is 60 degree, then the staggered structure is now called Gauche structure. So again यहाँ पर भी अगर हम देखें तो this angle between these 2 methyl group is also 60 degree because यहाँ से यहाँ तक का 120 होता है, तो ये उसका आधा है, इसलिए ये भी 60 डिग्री है। तो इसे भी हम लोग क्या नाम देंगे? गाउस। तो ये स्ट्रक्चर भी हमारा गाउस स्ट्रक्चर ही है। अब एक ही नाम बाकी बचा, इफ। अब आप हमें बताइए कि यहाँ पर दोनों मिथाइल ग्रुप के बीच में कितना एंगल बनता है? तो आप सीधा कह पाएंगे ये 180 डिग्री का एंगल है। यहाँ पर दे आर सिचुएटेड जस्ट ऑपोजिट टू ईच अदर, तो 180 डिग्री का एंगल है। इफ द एंगल ऑफ इंसिडेंट बिटवीन 2 मिथाइल ग्रुप इज 180 डिग्री इन कन्फॉर्मर्स ऑफ ब्यूटेन, then such conformer is called an anti-conformer. So anti means angle of incident is 180 degree between 2 methyl groups in case of butane, or in other cases the angle between 2 larger functional group if is 180 degree, then such structure is called anti. तो एंटी तभी कहा जाएगा जब 2 लार्जर फंक्शनल ग्रुप के बीच का डाइहेड्रल एंगल 180 डिग्री हो। 180 डिग्री वाला एंटी 60 डिग्री हो इस तरफ से या इस तरफ से, तो उसे कहेंगे गाउस। और पूरी तरह से एक दूसरे को कवर कर रहे हो ऐसा स्ट्रक्चर इक्लिप्स माना जाता है, और दीज आर पार्शियली इक्लिप्स। तो अब हमारे पास 7 डिफरेंट स्ट्रक्चर्स है ब्यूटेन के कन्फॉर्मेशनल आइसोमर्स। अब हम इसकी एनर्जी के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो पहले इस बोर्ड को मुझे क्लियर करना पड़ेगा। आप लोग वीडियो को पॉज करके सभी कन्फॉर्मर एक बार खुद से ड्रॉ कीजिए, उसके बाद हम लोग इसकी एनर्जी रिलेटेड डिस्कशन आगे बढ़ाएंगे। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे कोई एक जगह पर मैं इन सभी की स्टेबिलिटी और एनर्जी का सीक्वेंस लिख देता हूं, फिर हम लोग इसे ग्राफिकली भी रिप्रेजेंट करेंगे। तो यहाँ पर थोड़ी जगह बना के, ओके, तो
the conformer in which two larger functional groups are very far from each other, then such conformer will be more stable because there will be lesser torsional strain, there will be lesser steric hindrance. तो ऐसा स्ट्रक्चर आप इसमें से फाइंड आउट कीजिए कि जिसमें सबसे ज्यादा डिस्टेंस हो दो बड़े फंक्शनल ग्रुप के बीच में। तो एक ही बात ध्यान में आएगी, एंटी वाली, इस एंटी स्ट्रक्चर में सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी रहेगी। सो ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी अगर हम ड्रॉ करना चाहें तो स्टेबिलिटी ऑर्डर विल बी लाइक दिस. D structure, that means an NT structure. D, which is NT, is the most stable structure. क्योंकि यहाँ पे दोनों मिथाइल ग्रुप के बीच में सबसे ज्यादा एंगल ऑफ इंसिडेंट. इससे थोड़ा कम स्टेबल कौन सा होगा, इसको अगर हम देखना चाहें तो हमारे पास ये जो स्टेगर्ड स्ट्रक्चर है गौश वाला, ये आएगा. क्योंकि यहाँ पर ये एक तो ये स्टेगर्ड काइंड ऑफ कन्फॉर्मेशन है और ऑल स्टेगर्ड्स आर कंपैरेटिवली मोर स्टेबल देन इक्लिप्स. दैट मींस ये तो सभी इक्लिप्स है, कुछ पार्शियली इक्लिप्स है, कुछ कंप्लीटली इक्लिप्स है, लेकिन ये स्टेगर्ड कन्फॉर्मर है. तो स्टेगर्ड ज्यादा स्टेबल रहता है इक्लिप्स के मुकाबले. तो हमारे पास B और F दोनों ही गौश और स्टेगर्ड है. That means they are comparatively more stable than eclipse and less stable than NT. So NT is the most stable. Somewhat less stable will be B, and the stability of B and F are same. They are Gauss. Okay. अब क्या बचा, पार्शियली इक्लिप्स और इक्लिप्स. तो सीधी बात है, अगर ये दोनों मिथाइल फंक्शनल ग्रुप टोटली इक्लिप्स पोजीशन में हो तो देयर विल बी लेस डिस्टेंस बिटवीन देम, एंड इफ दे आर इन सच काइंड ऑफ कंडीशंस देन द डिस्टेंस बिटवीन टू आइडेंटिकल ग्रुप्स और टू लार्जर ग्रुप इज मोर देन इक्लिप्स स्ट्रक्चर. सो यहाँ पर ज्यादा रिपल्सन होगा, एनर्जी ज्यादा होगी इसकी और स्टेबिलिटी कम, और पार्शियली इक्लिप्स थोड़ा ज्यादा स्टेबल रहेगा टोटली इक्लिप्स के मुकाबले. तो यहाँ पर हम लोग इससे थोड़ा कम स्टेबल वाला बताएंगे अपने पार्शियली इक्लिप्स को, जिसमें C और E स्ट्रक्चर से, स्ट्रक्चर C और स्ट्रक्चर E दोनों की एनर्जी सेम रहेगी, दोनों पार्शियली इक्लिप्स है. और सबसे कम एनर्जी, सबसे कम स्टेबिलिटी वाले स्ट्रक्चर बनेंगे A और G, क्योंकि ये टोटली इक्लिप्स स्ट्रक्चर है. दे सेम फंक्शनल ग्रुप्स आर क्लोजर टू ईच अदर. सो A and G, which are totally eclipse, are the least stable structure. तो हमने स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ लिख लिया है. एक क्वेश्चन 2014 में शायद जेई में पूछा गया था कि व्हाट इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ कन्फॉर्मर्स ऑफ ब्यूटेन. सिंपल सा आंसर रहेगा एंटी सबसे ज्यादा स्टेबल, उससे थोड़ा कम स्टेबल गौश, उससे थोड़ा कम स्टेबल पार्शियली इक्लिप्स, और सबसे कम स्टेबल रहेगा हमारा इक्लिप्स स्ट्रक्चर. ये सिर्फ ब्यूटेन के बारे में है. अगर स्ट्रक्चर कोई दूसरा हमें बताया जाए तो ये ऑर्डर शायद बदल सकता है, वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे. ओके, तो अब मैं इसको मिटा देता हूँ और हम लोग ग्राफ ड्रॉ करने वाले हैं अभी एनर्जी और एंगल ऑफ इंसिडेंट वाला. तो सबसे पहले ये हमारे पास जो स्टेबिलिटी ऑर्डर है उसे हम एनर्जी ऑर्डर में भी दिखा देते हैं. एनर्जी, तो एनर्जी किसकी सबसे कम रहेगी, तो फिर जो सबसे ज्यादा स्टेबल हो उसकी एनर्जी सबसे कम रहेगी. सो एनर्जी ऑफ B विल बी लीस्ट. उससे थोड़ी ज्यादा एनर्जी रहेगी B की, और B और F की एनर्जी बराबर रहेगी. उससे थोड़ी ज्यादा होगी C, और C और E की बराबर रहेगी, और उससे ज्यादा होगी A, एंड A और G की एनर्जी सेम रहेगी. तो ये एनर्जी का ऑर्डर हुआ और ये स्टेबिलिटी का ऑर्डर हुआ. ओके, अब हम लोग ड्रॉ करेंगे ग्राफ.
इस ग्राफ में on the x-axis we are going to indicate the angle of incident theta, angle of dihedral angle theta. यहाँ पे 0 और यहाँ पे 60 डिग्री बढ़ता जाएगा और यहाँ पर हम लोग लेंगे पोटेंशियल एनर्जी. तो नाउ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ A and G is highest. Potential energy of A and G is highest. That means highest potential energy will be of A and the angle of dihedral angle will be 0 of A. So here this is A. A से 60 डिग्री अगर हम आगे मूव करें, अब आपके पास ड्रॉ किए हुए फिगर्स है, आप अपनी नोटबुक में देखकर बताते जाइएगा. A से अगर हम 60 डिग्री आगे बढ़े, जो कि टोटली इक्लिप्स था, उससे 60 डिग्री आगे का स्ट्रक्चर हमारा था गाउस वाला स्ट्रक्चर, उससे 60 डिग्री रोटेशन के बाद हमें मिला था. तो गाउस स्ट्रक्चर, उसकी एनर्जी तो A से, गाउस स्ट्रक्चर दैट मींस B एंड F, उसकी एनर्जी तो A से बहुत कम है. तो 60 डिग्री वाला अगर यहाँ पर हम लोग पहुंचे तो हमारी एनर्जी घटेगी और ये एनर्जी घटकर यहाँ पर हमने जो बताया वो हमारा रहेगा गाउस वाला. पहले आता है B, अभी FB आएगा. ओके, और 60 डिग्री पे हमें गाउस मिला. गाउस को अगर हम 60 डिग्री रोटेट करें तो हमें स्ट्रक्चर मिलेगा पार्शियली इक्लिप्स, द स्ट्रक्चर C स्ट्रक्चर. दैट मीन्स द एनर्जी ऑफ C इज कंपैरेटिवली, यहाँ पर हमारी B की एनर्जी है, B से हमारे C की एनर्जी थोड़ी ज्यादा है, तो हमें ये लाइन अप साइड जाएगी. लेकिन वो लाइन A से तो नीचे ही रहनी चाहिए. तो हम ये 60 डिग्री वाला रोटेशन अगर हम करें, यहाँ पर हमारा 60 हुआ और यहाँ पर हमारा हुआ 120 और ये C की एनर्जी दिखाता है. फिर से आगे बढ़ते हैं. C के बाद आया था हमारा D स्ट्रक्चर एंटी काइंड ऑफ स्ट्रक्चर था 180 डिग्री का, और एंटी की एनर्जी तो सबसे कम है, सबसे कम एनर्जी एंटी की है, B से भी कम है. एंटी की एनर्जी B से भी कम है. तो ये हमारा ग्राफ यहाँ पर नीचे तक जाएगा. तो ये हमारा हुआ 180 डिग्री और यहाँ पे हमें मिलेगा D से हम लोग आगे बढ़े. अगर और 60 डिग्री रोटेट करें, 180 प्लस 60 दैट मीन्स 240 डिग्री, देन अगेन वी कैन हैव partially eclipsed structure and partially eclipsed means structure E. और E की एनर्जी तो हमारे D से तो ज्यादा ही है, D से तो ज्यादा है, लेकिन B से भी ज्यादा है, B से भी ज्यादा, B से भी ज्यादा हमारे D की E की एनर्जी रहेगी, B से ज्यादा. दैट मीन्स हमें इस C के बराबर पहुंचना है. तो ये हमारा ग्राफ अब यहाँ से आगे जाके इस तरफ आएगा. एक गाइडलाइन यहाँ पे मैं ड्रॉ कर देता हूँ ताकि ये ड्रॉ करने में आसानी रहे. दूसरी गाइडलाइन यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ, तीसरी यहाँ पे. सो दिस इज आवर 240 डिग्री एंगल एंड हियर वी आर हैविंग स्ट्रक्चर E. इससे आगे बढ़े तो हमें मिलेगा F स्ट्रक्चर. अगेन गाउस स्ट्रक्चर है, उसकी एनर्जी B के बराबर होगी. तो गाउस स्ट्रक्चर की एनर्जी यहाँ पर हमें मिलेगी. ये हमारा एंगल हुआ 240 में 60 ऐड करने से मिलता है 300 डिग्री, और यहाँ पर हमें मिलेगा स्ट्रक्चर F, और F के बाद हमें मिलेगा अगेन G, और G की एनर्जी A के बराबर रहती है. तो A के बराबर दैट मीन्स हमें यहाँ तक पहुँचना पड़ेगा. ये हमारा हुआ 360 डिग्री. ये है G. So this is the energy chart of the conformational isomers of butane. A और G की एनर्जी सबसे ज्यादा, उससे थोड़ी कम C और E की एनर्जी, उससे भी थोड़ी कम B और F की एनर्जी, और सबसे कम एनर्जी रहेगी D की. That means D which is having less potential energy, that means it is more stable structure. तो ब्यूटेन के बारे में ये सब था.
ये ऑर्डर सिर्फ ब्यूटेन के बारे में है। अगर कोई ऐसा स्ट्रक्चर हमें दिया जाए जिसमें कि इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल हो, उस कंडीशन में गौश will be more stable than NT, because in NT condition the functional groups which can have intramolecular hydrogen bonding are far from each other. That means उस कंडीशन में इन दोनों फंक्शनल ग्रुप के बीच में इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बन पाएगा। सो उस तरह से NT कंपैरेटिवली लेस स्टेबल रहेगा गौश के मुकाबले। सो उन कंडीशन में गौश विल बी मोर स्टेबल देन NT। दो एग्जांपल ऐसे लेते हैं हम लोग। ये ग्राफ को मैं मिटा देता हूँ, आप वीडियो को पॉज करके ये ग्राफ भी ड्रॉ कर सकते हैं। ओके, तो एक एग्जांपल हम लोग लेंगे इथेन 1,2 डायोल, दैट मींस इथिलीन ग्लाइकोल। इथिलीन ग्लाइकोल, द फॉर्मूला ऑफ इथिलीन ग्लाइकोल विल बी लाइक दिस। This is ethane 1,2 diol. We have only 2 carbons, and this sigma bond is going to be rotated. So first of all, we will draw this carbon with a upside down Y. So this is our first carbon, 1 and 2. This is the first carbon. It is having 2 hydrogen and 1 OH functional group. So here there is 1 OH functional group, and here we have 2 hydrogen. This is our carbon. The second carbon is indicated by a circle, and it is also having 2 hydrogen and 1 OH group. Suppose here we have 1 OH and we have 2 hydrogens. So this is an eclipse kind of structure which is very less stable because there is much more repulsion between these groups. But if we rotate it 60 degree, here theta is 0 because 2 identical larger groups are having 0 degree dihedral angle in this structure. Moving further 60 degree rotation clockwise, in that condition it will be like this. This is our first carbon, this is our OH functional group, 2 hydrogens. The second carbon is a red circle, and here we have OH, one H here and the other here. So it is kind of staggered structure, or it is eclipse. You can also call it staggered eclipse. It is staggered, but it is not NT. It is only staggered. As I told you before that if an eclipse structure is rotated 60 degree, then it is converted into staggered. But if in staggered structure the dihedral angle is theta is 60, ये दोनों बड़े फंक्शनल ग्रुप के बीच का एंगल अगर 60 डिग्री हो तो उसे गौश कहें। अगर वो 180 डिग्री पे हो तभी उसे एंटी कहा जाए। तो अभी तो ये गौश है, तो अगर इसको हम गौश कहें, that means theta is equal to 60 degree. So यहाँ पे intramolecular hydrogen bonding are possible. Suppose this H is having hydrogen bond with this O, so it is intramolecular hydrogen bonding. But suppose अगर ये अभी और 60 डिग्री रोटेट करेगा तो पार्शियली इक्लिप्स बनेगा, फिर से अगर 60 डिग्री रोटेट करेगा तभी वो एंटी बनेगा। दैट मीन्स अगर हम इसे 120 डिग्री रोटेट कर दें यहाँ से 120, सो OH यहाँ पर पहुंच जाएगा, तो उस कंडीशन में ये हमें एंटी स्ट्रक्चर मिलेगा। So this is OH, H, H, and second carbon. Here we have OH, H, and H. So this is NT structure. And in this structure, though these groups are very far from each other, but intramolecular hydrogen bonding is not possible. That means this structure NT is less stable than this gauche. So in ethane 1,2 diol, NT is less stable than gauche. Gauche is most stable structure and having lesser amount of energy because of intramolecular hydrogen bonding. If we have a molecule like this, fluoroethanol, in fluoroethanol there is also a possibility of intramolecular hydrogen bonding between fluorine and hydrogen. In that condition also, gauche is
more stable than NT. So here we are having two examples in which intramolecular hydrogen bonding is possible and therefore गौश ज्यादा स्टेबल रहता है एनटी के मुकाबले. तो ये हमें याद रखना है. बाकी ब्यूटेन का अगर क्वेश्चन हो तो हमारे पास ये ऑर्डर है ही. एनटी सबसे ज्यादा स्टेबल, उससे थोड़ा कम गौश, उससे थोड़ा कम पार्शियली इक्लिप्स और सबसे कम स्टेबल रहेगा टोटली इक्लिप्स. तो ये था ब्यूटेन के कन्फॉर्मेशनल आइसोमर. अभी एक और टॉपिक हम लोग सीखने जा रहे हैं, वो है साइक्लिक कंपाउंड में कन्फॉर्मेशनल आइसोमर्स किस तरह से बनते हैं, वो हम लोग डिस्कस करेंगे. अभी तो अब शुरू करते हैं कन्फॉर्मेशनल आइसोमर्स ऑफ साइक्लोअल्केन. सो फर्स्ट ऑफ ऑल साइक्लोअल्केन का हम लोग पहले स्ट्रक्चर देख लेते हैं. सपोज वी हैव साइक्लोप्रोपेन, दिस इज साइक्लोब्यूटेन, this is cyclopentane, and this is cyclohexane. So these are the most familiar cycloalkanes. As you can see, all these structures are like planar structure. And if suppose अगर हम ऐसा इमेजिन करें कि ये सभी साइक्लोअल्केन प्लेनर है, तो उस कंडीशन में सबसे पहले अगर हम एंगल देखें बिटवीन दीज टू कार्बन कार्बन बॉन्ड्स, देन इट इज ओनली अ 60 डिग्री एंगल. इन साइक्लोब्यूटेन द एंगल इज 90 डिग्री. इन साइक्लोपेंटेन इफ इट इज प्लेनर, हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि ये सभी स्ट्रक्चर प्लेनर है, तो यहाँ पे बॉन्ड एंगल रहेगा 108 डिग्री के अराउंड. And in cyclohexane it will be 120 degree. But these compounds are alkane, that means carbon is in sp3 hybridization, and if carbon is in sp3 hybridization, then the ideal bond angle should be 109 degree and 28 minutes. That means about 109.5 डिग्री. 109.5 डिग्री इतना एंगल होना चाहिए दो कार्बन कार्बन बॉन्ड के बीच में. पर अगर इस स्ट्रक्चर्स को हम देखें तो इनमें से किसी का भी बॉन्ड एंगल 109.5 डिग्री नहीं है. That means there will be some angular strain between these bonds or in these structures. Here in cyclopropane, bond angle is just 60 degree, which is much more lesser than the ideal bond angle. So there will be angular strain in cyclopropane, and therefore cyclopropane is very less stable structure. Moving further, this is cyclobutane, and here the bond angle is 90 degree, which is also much more lesser than the ideal bond angle 109.5 degree. So there is also some angular strain in this structure. When we see cyclopentane, then this cyclopentane, if it is planar, then bond angle is 108 degree. That means it is much more closer to the ideal sp3 hybridized bond angle. That means cyclopentane should be the most stable structure among all cyclic alkane. The German scientist Bayer predicted that he assumed that cyclopentane is a planar and the bond angle in cyclopentane is 108 degree, which is very closer to the ideal bond angle. Therefore, according to Bayer, I am saying according to Bayer, cyclopentane is the most stable cyclic alkane because it is having bond angle closer to the ideal bond angle. But if we see cyclohexane, then bond angle is 120 degree. That means it is much more greater than the ideal bond angle. In that case also, there will be some angular strain. So according to Bayer, again I am speaking according to Bayer, cyclohexane is not as stable as cyclopentane. So among all these cyclic structures, according to Bayer, again according to Bayer,
cyclopentane is the most stable cyclic alkane. The reason, as I told you before. So according to Bayer, cyclopentane is the most stable, but in reality cyclohexane is the most stable cyclic alkane among all. So it is more stable than cyclopentane in reality. तो बेयर से क्या गलती हुई, इसको हमें पहले सोचना पड़ेगा. बेयर ऐसा एज्यूम कर रहा था कि सभी साइक्लोअल्केन प्लेनर होते हैं, लेकिन वास्तव में साइक्लोप्रोपेन तक ही प्लेनर होते हैं. दैट मीन्स ओनली साइक्लोप्रोपेन इज द प्लेनर साइक्लोअल्केन. रिमेनिंग ऑल साइक्लोअल्केन्स आर नॉन प्लेनर. Therefore, this cyclopentane पहले एज्यूम किया गया था कि वो प्लेनर है, लेकिन ये प्लेनर नहीं है. साइक्लोहेक्सेन भी प्लेनर नहीं है, और साइक्लोहेक्सेन में बॉन्ड एंगल 120 डिग्री नहीं है. आइडियल बॉन्ड एंगल के जितना ही होता है, दैट मीन्स 109 डिग्री एंड 28 मिनट. सो साइक्लोहेक्सेन इज हैविंग bond angle, ideal bond angle, therefore it is more stable than cyclopentane. And if cyclohexane is not planar, then उसका स्ट्रक्चर तो होगा किस तरह का. अब हम उसके बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि हमारा मेन टॉपिक है इस डिस्कशन. तो चलिए आगे बढ़ते हैं. तो क्यों स्टेबल होता है साइक्लोहेक्सेन? रीजन है, इस साइक्लोहेक्सेन का जो स्ट्रक्चर है वो प्लेनर होने के बजाय प्लकर स्ट्रक्चर है, उबड़ खाबड़ स्ट्रक्चर है. इट इज नॉट प्लेनर, उबड़ खाबड़, प्लकर टाइप ऑफ स्ट्रक्चर. एंड दिस साइक्लिक कंपाउंड्स आर समटाइम्स बेंड एंड ट्विस्ट टू मिनिमाइज द एंगुलर स्ट्रेन, to minimize the torsional strain, and also to minimize the steric strain. First of all, ये 3 words को हम लोग बराबर से समझ ले. Angle strain. What is angle strain? Suppose if a carbon is in sp3 hybridization and bond angle should be 109 degree and 28 minutes. But if there is bond angle other than this figure, then there must be some angular strain. आइडियल बॉन्ड एंगल से कम या ज्यादा अगर बॉन्ड एंगल रहेगा, तो वहां पे जो स्ट्रेन आएगा मोलेक्यूल में, उसे कहा जाएगा एंगल स्ट्रेन और एंगुलर स्ट्रेन, जो कि मोलेक्यूल को डिस्टेबलाइज बनाता है. दूसरा स्ट्रेन है वो है टॉर्सनल स्ट्रेन. टॉर्सनल स्ट्रेन कब जनरेट होगा? जब इक्लिप्स स्ट्रक्चर हो, तभी सेम फंक्शनल ग्रुप्स आर वेरी क्लोजर टू ईच अदर. इन दैट कंडीशन देयर विल बी सम टॉर्सनल स्ट्रेन, एंड दिस इक्लिप्स स्ट्रक्चर इज विलिंग टू बी कन्वर्टेड इनटू स्टेगर्ड स्ट्रक्चर. तो तभी टॉर्सनल स्ट्रेन पाया जाएगा जब स्ट्रक्चर इक्लिप्स फॉर्म में हो. वो स्टेगर्ड बनने के लिए तुरंत ही अपने को ट्रांसफॉर्म करेगा, और अगर स्टेगर्ड स्ट्रक्चर है तो वो इक्लिप्स बनने का प्रतिरोध करेगा. दिस फिनोमिनन इज नोन एज टॉर्सनल स्ट्रेन. एंड द थर्ड वन इज स्टेरिक स्ट्रेन. Steric strain means the strain or repulsion occurred between the two same functional group or two different functional groups which are closer to each other. अगर दो functional group, दो groups अपने एक दूसरे से ज्यादा नजदीक रहेंगे, तब उनके बीच में जो रिपल्सन इफेक्ट आता है उसे कहा जाता है स्टीयरिक स्ट्रेन. तो अगर हम देखें तो एंगल स्ट्रेन को हम लोग इस तरह से बता सकते हैं. एंगल स्ट्रेन, आइडियल बॉन्ड एंगल होना चाहिए इतना, अगर इससे ज्यादा हो तो ये कम होने का ट्राई करेगा, और इससे कम हो तो ये ज्यादा होने की ट्राई करेगा. इसे कहते हैं एंगल स्ट्रेन. टॉर्सनल स्ट्रेन मींस इक्लिप्स स्टेगर्ड बनने की तरफ प्रयत्न करेगा, और अगर स्टेगर्ड हो
तो वो इक्लिप्स बनने का प्रतिरोध करता हुआ दिखेगा। और स्टीयरिक स्ट्रेन मीन्स if the distance between functional group is less, then there will be repulsion between these functional groups. So it is called steric strain. So angular strain, torsional strain, steric strain. These three kind of strains can be seen in any cyclic structure. And all cyclic structures are willing to minimize such strains by ट्विस्टिंग दी मोलेक्यूल इटसेल्फ। तो अब साइक्लोहेक्सेन में ये स्ट्रेन्स कम करने के लिए किस तरह की गतिविधि होती है उसके बारे में हम लोग अब डिस्कस करने जा रहे हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, साइक्लोहेक्सेन इज अ नॉन प्लेनर स्ट्रक्चर। ये बात अपने दिमाग में बिठा दीजिए। इट इज नॉट प्लेनर, इट इज अ प्लकर स्ट्रक्चर। तो किस तरह का स्ट्रक्चर होगा साइक्लोहेक्सेन का, देखें तो पहला मैं आपके सामने रखता हूं साइक्लोहेक्सेन का प्लकर स्ट्रक्चर, अ नॉन प्लेनर स्ट्रक्चर विच इज लाइक दिस। This is the non-planar structure of cyclohexane. Here we have 1, 2, 3, 4, 5 and 6 carbons, and all carbons are not in a single plane. This is a three-dimensional structure. It looks like a chair, so it is known as a chair conformer of cyclohexane. And in this chair conformer, all the carbon which are having two hydrogens, and these hydrogens are staggered in manner. सभी कार्बन के साथ जुड़े हुए हाइड्रोजन एक दूसरे की स्टेगर्ड पोजीशन में है, इसलिए यहाँ पर टॉर्सनल स्ट्रेन कम रहेगा। स्टेगर्ड है इसलिए वो अपने आप से बहुत ही दूर है एक दूसरे से, so there will be lesser steric hindrance also. So cyclohexane का ये chair form है, and in this chair form bond angle is 109 degree and 28 minute, and all hydrogens are staggered in this conformer. But अगर ये cyclohexane planar होता तो यहाँ पे बॉन्ड एंगल 120 डिग्री बनता और सभी हाइड्रोजन एक दूसरे से इक्लिप्स फॉर्म में होते हैं, तो यहाँ पर एंगल स्ट्रेन भी बढ़ जाता है और टॉर्सनल स्ट्रेन भी बढ़ जाता है। Therefore, cyclohexane is not a planar structure, it is a pluckered structure and it looks like a chair, so it is known as chair conformer. थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, इस चेयर कन्फर्मर के बारे में भी कई बातें हमें जाननी है जो कि हमारे जेई और नीट के क्वेश्चंस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट। ओके, अगर हम इस चेयर फॉर्म ऑफ साइक्लोहेक्सेन को न्यूमैन प्रोजेक्शन में बताना चाहे तो हमें किस तरह से ड्रॉ करना पड़ेगा। पहले हम लोग नंबर दे देते हैं, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ का। So, suppose this is the bond between first and second carbon. So, first carbon will be indicated by a Y. So, it is upside down Y. This is our first carbon. One. Second carbon, रेड सर्कल से हम लोग बताएंगे इस सेकेंड कार्बन को। अब देखिए इस फर्स्ट कार्बन के साथ कौन कौन जुड़ा हुआ है। दो हाइड्रोजन है और एक CH2 ग्रुप अटैच हुआ है। दो हाइड्रोजन, एक CH2 ग्रुप। That means if we have here two hydrogens and one CH2 group, and the second carbon which is having staggered hydrogen from this. So this second carbon which is a red circle can have also two hydrogen and one CH2 group, लेकिन वो staggered है। तो इस तरह से बताएंगे हम लोग, यहाँ पे और हाइड्रोजन
hydrogen and again a CH2 group. So this red is our second carbon. First carbon, second carbon, which is a red circle. This carbon is having one CH2 group. That means red CH2 group. This is our third carbon. So it is third carbon. तो ये जो ब्लू CH2 हुआ वो हमारा सिक्स्थ कार्बन हुआ, ये हमारा सिक्स्थ कार्बन। ओके, तो हमने इसको न्यूमैन प्रोजेक्शन में बताया। अब हम ये बॉन्ड को भी बताने वाले हैं जिसके पास फिफ्थ कार्बन और फोर्थ कार्बन है। ये फिफ्थ कार्बन हमारी तरफ है, फोर्थ कार्बन पीछे की ओर है। तो हमारी तरफ हो उस कार्बन को हम लोग ब्लू वाई से दिखाएंगे, ब्लू वाई। तो इस तरह से लिखेंगे, ये हमारा ब्लू वाई। और इस ब्लू वाई के साथ कौन कौन जुड़ा हुआ है, तो पहले देखिए, तो 2 हाइड्रोजन है और एक 6 वाला मिथाइल ग्रुप CH2 है। तो अगर हम इसको इस तरह से ड्रॉ करें, इसके एकदम बराबर में, तो ये हमारा हाइड्रोजन हुआ, ये हाइड्रोजन, यहाँ पे तो ऑलरेडी हमारा छठा CH2 है। और this fourth carbon, now this is our fifth carbon and fourth carbon will be indicated by a red circle। और उसके साथ भी 2 हाइड्रोजन और ये थर्ड वाला मिथाइल ग्रुप CH2 ग्रुप जुड़ा हुआ है स्टेगर्ड फॉर्म में। तो हम लोग इसको यहाँ से जोड़ देते हैं और यहाँ पर स्टेगर्ड 2 हाइड्रोजन लगा देते हैं। अगर हम सभी कार्बन को नंबर से दिखाए तो हमारे पास ये पहला कार्बन जो कि ये है, दूसरा कार्बन रेड सर्कल ये है, तीसरा कार्बन यहाँ पे ये है, चौथा कार्बन अगेन दिस रेड सर्कल इज अवर फोर्थ कार्बन, उसके साथ जुड़ा हुआ है फिफ्थ कार्बन और उसके साथ जुड़ा हुआ है ये सिक्स्थ कार्बन। So this is the Newman projection of our cyclohexane's chair conformer. Here this is completely staggered structure, so there will be less torsional strain, less angular strain and less steric hindrance. That's why cyclohexane is always obtained in chair conformer because it is the most stable conformer of cyclohexane. इस साइक्लोहेक्सेन के बारे में अभी और भी कुछ जानना है हमें। वो है इसके साथ जुड़े हुए जो हाइड्रोजन है, दैट मीन्स द वैलेंसी ऑफ कार्बन इन चेयर कन्फर्मर आर ऑफ 2 टाइप्स। वन इज axial valency and the second one is equatorial valency। एक्सियल वैलेंसी और इक्वेटोरियल वैलेंसी होती है सभी कार्बन की। सपोज हाइड्रोजन इज एक्सियली अटैच्ड, देन दिस इज कॉल्ड एक्सियल वैलेंसी, व्हाइल इफ वन हाइड्रोजन इज ओवर हियर देन इट इज नोन एज इक्वेटोरियल वैलेंसी। अगर बड़े फंक्शनल ग्रुप्स इक्वेटोरियल वैलेंसी की पोजीशन में हो तो वो कन्फर्मर सबसे ज्यादा स्टेबल रहता है, क्योंकि वहां पर एंगुलर स्ट्रेन और स्टीयरिक हिंड्रेंस कम पाया जाता है। सो मोस्टली बिगर फंक्शनल ग्रुप शुड बी एट इक्वेटोरियल वैलेंसी और इक्वेटोरियल पोजीशन। If the bigger functional groups are in axial position, then such conformer is comparatively less stable। और एक बात बता दूं, सपोज ये बिगर ग्रुप, हमारे पास बिगर ग्रुप टर्शियरी मिथाइल है। सपोज इंस्टेड ऑफ दिस हाइड्रोजन वी आर हैविंग टर्शियरी मिथाइल फंक्शनल ग्रुप। इन दैट कंडीशन all tertiary methyl functional groups must be at equatorial position। एक्सियल पोजीशन में टर्शियरी मिथाइल ग्रुप हो ऐसा कोई कन्फर्मर पॉसिबल ही नहीं बनेगा, क्योंकि यहाँ पर स्टीयरिक हिंड्रेंस बढ़ जाता है। सो इन केस ऑफ टर्शियरी मिथाइल एज अ सब्स्टिट्यूएंट ऑफ कार्बन, देन इट मस्ट बी एट इक्वेटोरियल पोजीशन। और अब हम लास्ट पॉइंट डिस्कस करने वाले हैं, वो है रिंग फ्लिपिंग इन
साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ साइक्लोहेक्सेन, रिंग फ्लिपिंग। तो रिंग फ्लिप कैसे होता है और कौन सा रिंग का स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल होता है उस केसेस में, वो अब हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। तो अब आखिरी पॉइंट, साइक्लोहेक्सेन में रिंग फ्लिपिंग। रिंग है वो फ्लिप होता है, लेकिन हाँ वो जो रोटेशन और जो कन्फॉर्मेशनल आइसोमर्स मिलते हैं उसमें रोटेशन थोड़ा रिस्ट्रिक्टेड होता है। जो नॉर्मल अल्केन्स में रोटेशन होता है सिग्मा बॉन्ड का, उस तरह का रोटेशन यहाँ पर नहीं पाया जाता, क्योंकि ये साइक्लिक स्ट्रक्चर है। यहाँ पे रोटेशन इज समवट रिस्ट्रिक्टेड। So this is the first, which is a chair conformer of our cyclohexane. Here, suppose this carbon, which is indicated by a hollow circle, suppose if it goes upside, then we can have the structure like this. So it looks like a boat. So it is named as boat conformer. This was chair conformer. This is boat conformer. Here, these four carbons are in a same plane. All are planar carbons. Here, these four carbons were not in a single plane, but here they are in a plane. That means, if these carbons are in a single plane, then all hydrogens are eclipsed to each other. In that condition, there will be repulsion between them. There will be torsional strain between them. So this boat conformer is comparatively less stable than this chair conformer. And one more thing, the hydrogens which are attached to these carbons, which are at the top, one hydrogen over here, second is over here, one is here, second is over here. So these hydrogens are known as flagpole hydrogens. These are flagpole hydrogens and they are directed towards each other. That means there will be some steric hindrance or repulsion between them, which makes this structure less stable. So boat is comparatively less stable than chair. But this chair conformer sometimes is converted into boat conformer, and this boat conformer will again can be transformed into chair conformer, and that chair conformer can be either like this or like that. That means if this carbon is going to upside, then we can have such boat conformer. Again, if the same carbon goes down, then again we can have the initial structure, which is a chair conformer. The second possibility is this dark circle indicated this carbon. Suppose this goes down, then we can have also a chair conformer, but which is slightly different from this. So both these conformers are chair conformers. They are having same stability, and this is boat conformer, which is comparatively less stable. When a carbon changes its position, then the hydrogens attached with it, one is axial and one is equatorial. तो ये बात भी याद रखनी पड़ेगी कि जब भी कार्बन अपनी पोजीशन बदलता है, तो जो एक्सियल पोजीशन पे होता है पहले, वो अब इक्वेटोरियल पोजीशन पे आ जाता है, और जो इक्वेटोरियल पोजीशन में था वो अब एक्सियल बन जाता है। ये भी बात हमें याद रखनी है। When a chair conformer is converted into boat, or boat is converted into chair, then in this transformation all axial functional groups becomes equatorial, and equatorial functional group will become axial. So this is all about the ring flipping in cyclohexane. So now we are concluding this lecture of our कन्फॉर्मेशनल आइसोमर्स। ये लेक्चर भी बहुत बड़ा हो गया, लेकिन इतना तो हमें सीखना ही था इस लेक्चर में। तो अभी तक तो हमने पढ़ा सिर्फ कन्फॉर्मेशनल आइसोमर्स। अभी स्टीरियो आइसोमर्स हमें सीखने बाकी है। स्टीरियो आइसोमर्स में से ऑप्टिकल आइसोमर्स, वो भी बहुत ही लंबा टॉपिक बनेगा। नेक्स्ट वीडियो हम लोग उस पर बनाने जा रहे हैं। तो ये था हमारा कंसेप्ट। आप इसके ऊपर कई सारे प्रॉब्लम्स को प्रैक्टिस कर सकते हैं। मैं भी ऐसा प्रयत्न करूंगा कि एक वीडियो
इसके रिलेटेड जो एमसीक्यू है वो आपके सामने रखूं, कुछ सिलेक्टेड एमसीक्यू, बहुत ही छोटा वीडियो बनाऊंगा, 10 से 12 एमसीक्यू कन्फॉर्मेशनल आइसोमर्स के ऊपर के सिलेक्टेड चुन के आपके सामने रखूंगा। उसका वीडियो इसके बाद अपलोड होगा। तो आप सभी से गुजारिश है कि ये वीडियो देखें, इसको लाइक करें, शेयर करें। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब भी करें और आपके सजेशन कमेंट्स में ज़रूर लिखें, क्योंकि उससे मैं खुद को अपग्रेड कर पाऊंगा। सो थैंक यू एंड हैव ए नाइस लर्निंग।